to Semaphore East, a new podcast series from Kashmir where we try to bring you prominent voices to discuss important issues facing the region. और आज हमारे साथ मौजूद है अमरीन रसूल. She is a trained lawyer. She's practiced in Supreme Court for quite some years in Delhi, and then she's also been in corporate law in Bangalore, if I'm not mistaken. But now she's doing something very interesting. She has, in fact, started one of the first children's publishing houses of Jammu and Kashmir called the Quillers Club. एंड इन्होंने अभी तक 2 किताबें जो है वो पब्लिश करी हैं. लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, जहाँ तक मेरा आइडिया है लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है, और 2 प्रोडक्ट्स इनके फिलहाल आए हैं. बट इनका जो पब्लिशिंग हाउस है वो आज हमने इनको दावत की हमारे पॉडकास्ट में, और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस कर रहा है, और वो है जम्मू कश्मीर के जो बच्चों की बेसिकली डिस्कनेक्ट है कल्चर के साथ, लैंग्वेज के साथ. एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि अमरीन इज़ टेकिंग दिस थिंग हेड ऑन कि हम इस पर कैसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो. थैंक यू अजान, थैंक यू. इट्स लाइक लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल. यस यस. एंड नाउ वी आर सिटिंग प्रोफेशनली अक्रॉस. बिल्कुल. इनफैक्ट मैं ये बोलता चलूँ कि मैं जब आपके साथ when we were in 10th you were, I think you topped हमारा पूरा बैच आपने टॉप किया था. I'm not sure 500 नंबर होते थे शायद, आपके 480 या ऐसे कुछ थे, राइट? मेरे तो खैर दो सब्जेक्ट अगर और हो जाते तो शायद मैं 480 तक पहुंच जाता. 5 सब्जेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो अमरीन, टेल अस कि लॉ से पब्लिशिंग हाउस, व्हाई, what was it like basically? See, I'll not talk about law से publishing house. The feeling of writing, the passion for writing was always there because I was raised as a reader. जब मेरा बचपन जो कश्मीर में गुजरा, we did not have access to a lot of technology. इतना था भी नहीं, कश्मीर ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा access नहीं था. And then we did not have, the kind of channels जितने अब हैं, Netflix and all of that. So books was my major source of entertainment. The books that I'm talking about, not academic, I'm talking about the non-academic books. And I remember one of my core memories about books was Sherlock Holmes. It was my most favorite book. And thereafter, it is said that you cannot be a writer unless you are a reader. तो हमेशा से I had this thing, I could best communicate with anyone through written words, whether it's writing or text messages tak. I would always prefer that way of communicating my emotions. So as a lawyer also, I was very, very interested in drafting the petitions, before they are presented in court and they're argued. That was not the exciting part for me. For me, it was, drafting the petition, getting the facts, writing them in a certain way कि, judge भी मुतासिर हो जाए उससे. So, writing has always been, the core of my DNA, so to say. Part of you, basically, who you are. Correct. So, किस तरह ये हुआ? I was working, and then, I got married and I had my daughter. And जैसे मेरा बचपन गुजरा, that was my handbook for me. This is how, you are supposed to raise children. Children are supposed to read. So, जब ये छोटी सी थी, I used to get her books. तो she turned out to be a voracious reader. मुझसे भी ज़्यादा, she's interested in books. And all throughout, I raised her in Bangalore. My family lives in Bangalore now. तो मैंने क्या देखा वहाँ बहुत सारे South Indian publishing houses हैं, like Tulika, Karadi Tales, Pickle Yoke, all of these fantastic writers, fantastic publications, और उनकी books की quality. Azan, you should go back and read children's books. They are so beautiful, they're so lovely, they're so full of hope. मतलब मुझे तो adult books से ज़्यादा children's book में interest है. So I used to read to her, and in the process read with her all those books. And what I noticed is वो लोग अपना ना culture बहुत promote करते हैं. And I was in search of something that would be about Kashmir in terms of books for my daughter. That it started from there. कि अगर मेरी बेटी साउथ इंडियन कल्चर देख रही है, या फॉर एग्जांपल
मोस्टली इंग्लिश ऑथर्स का कल्चर देख रही, कश्मीर का कहाँ है, एंड आई नेवर फाउंड वन. एंड time passed by and I did not pay attention to it, although it was in the back of my mind. And then when I took a career break for personal reasons, and that's when I realized, before I could restart going back to a law firm, I thought about it and I was like, this is the time when I can give time to my passion. It is now or never, because at this age, I this is the age when you can experience, when it comes to your profession. So I thought I'll just write it, because I waited for 8 years for somebody to come and write and nobody came. So might as well take the pen and write a book. मैं अपनी बेटी को जो स्टोरी सुनाती हूँ, क्या डिफरेंट है, बच्चों को वही तो सुनना है. So that's how the journey journey started, as from a lawyer to an author, I would say, not publishing house. That was the second step after that. So it's something very interesting जो आप बोल रहे हो कि वहाँ पे साउथ इंडिया में आपने कहा कि बहुत एक कल्चर है इस हिसाब से कि चिल्ड्रंस बुक्स का, और ये वहाँ रीडिंग कल्चर बहुत है. चिल्ड्रन बुक का मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, और अगर नहीं है तो क्यों है यहाँ पे ऐसा? देखिए, मुझे कोई बुक नहीं मिली, एंड आई कैन जस्ट काउंट ऑन माई फिंगर टिप्स 2-3 books I did find, but without naming the books, I can say that उसमें क्या होता था, see, you would write something about Samavar, says you write about it, and that's it. Those books were more like a glossary or an explanation, what is what, with cute illustrations on the side. But kids don't like being bombarded with information at the age of 4 and 5. वो तो पढ़ाई हो गई ना, वो तो उनको स्कूल में पढ़ा सकते हैं. When it comes to books, children do not enjoy informative books. They do not. So what I was looking for was a story book, like a proper बच्चों की story book, probably set in Kashmir, or that talks about the culture. कहीं तो हमारा culture reflect हो children's books में, वो मेरी नज़र में I did not find. जैसे इंग्लिश की अगर बात करें, जैसे बच्चों की किताबें तो नहीं बोल सकते, क्योंकि खैर बड़े भी एंजॉय करते हैं. हार्डी बॉयज, शर्लॉक होम्स जैसे आपने खुद जिक्र किया, या और भी कुछ किताबें हैं जो, तो यहाँ पे एक हिसाब से देयर इज नो, यहाँ पे मतलब वो एक कल्चर ही नहीं कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए, ऐसा है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कल्चर नहीं है उतना कि बच्चे जो हैं, व्हेन आई से बच्चे, आई मीन फ्रॉम द एज से 2+, even when they cannot read. I'm talking about the culture where parents can read to the kids. I'm not necessarily बच्चे ही खुद पढ़े. So मैंने जो difference देखा है बाहर और compared to Kashmir is that kids are read to from age 1 month, 2 month, and in fact there are few medical guidelines where they say when you're carrying your child during pregnancy, you can even read then. बच्चे तब भी सुनते हैं. So वो writing का culture तो बाद में आता है. There is if there is a demand, there will be supply, right? So मुझे लगता है यहाँ मैंने नहीं देखा कि culture है, you sit बेड टाइम में आप बच्चे के साथ बैठो, the parent has the time to read the book to the child, to develop that interest, to create that interest. वजह क्या है इसकी? क्यों? मतलब now that you are in the field now and you're a parent yourself, आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे, what is your view कि यहाँ पे क्यों नहीं है? Frankly speaking, I think access की भी बात है. जितना access चिल्ड्रंस बुक्स का बाहर है, अब तो खैर अमेज़ॉन है, अब तो हर चीज़ मिलती है, बट कल्चर वो डेवलप नहीं हुआ. बुक स्टोर्स उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द वेस्ट, वहाँ की तो मैं बात नहीं करी. मैं सिर्फ इफ़ आई कंपेयर व्हाट आई हैव सीन, लाइक इफ़ आई कंपेयर बैंगलोर विद कश्मीर, बैंगलोर में तो देयर आर प्रॉपर चिल्ड्रंस बुक स्टोर्स जहाँ अडल्ट बुक्स नहीं है. I'll name a few, like there's a beautiful store called Lightroom. They only have children's books. So you can just take your child there and बच्चा खुद pick कर सकता है. When you are in a store full of books, there is no other way. The child will pick something else. They'll only pick the book. तो वो मुझे लगता है एक stark difference जो है. दूसरा, and something very very grave I feel, we don't have libraries.
We do not have libraries here. Forget about children's libraries, उतनी ज़्यादा बड़ों के लिए भी नहीं है. एक आई एम टोल्ड SPS लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी चिल्ड्रंस सेक्शन आई एम नॉट अवेयर कि कितना बड़ा है, बट so far as children's libraries are concerned, They don't again exist, again yeah. the comparison, like my daughter is enrolled in a proper children's library and there are like many, not just one, like owned by private individuals. यहाँ वो नहीं है. यहाँ अब पे आपने बच्चे को वो एक्सेस ही नहीं रखा है तो कल्चर कैसे यहाँ पे बनेगा? लेकिन कैफेज है, शावरमा देते हैं वो तो यहाँ पे काफी चल रहा है. I don't know what to say to that. But, Cafe culture, you're right, yeah, काफी है. yeah. But I think we should come together. There are so many people, very smart people who live in Kashmir. They should come up. जो कैफे खोल रहे हैं उनको एक बुक स्टोर भी खोलना चाहिए, बच्चों का बुक स्टोर खोलना चाहिए. And I think it starts with parents. Yeah. Parents need to start reading to their kids for their kids to develop that interest. इसका इम्पैक्ट क्या है? Books. अगर लाइब्रेरी नहीं है, या इसका आप क्या स्टार्क डिफरेंस, अगर आपको बोलें कि हमें आप 4-5 डिफरेंसेस बताएं एक ऐसी जगह के बच्चों में और कश्मीर के बच्चों में जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे लाइब्रेरीज है, करेक्ट, एग्रीकल्चर, तो आपको क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? व्हाट इज द एज अ कश्मीरी चाइल्ड में व्हाट इज दैट थिंग दैट यू सी कि ये मिस, ये कंप्लीट, दिस इज नॉट देयर, what you see in a okay. I will not compare a Kashmiri child with somebody who's living outside. Let's not do that. We can compare a child who reads versus a child who does not read. Let's put it this way. अब कश्मीर में कितने readers और non-readers हैं, that is subjective because I don't know, I don't have the complete stats. मेरे आसपास का मुझे पता है, from my experience, very few kids read, you know, like the way they should. But comparing reader versus non-reader, even you know, these are stats which say that reader बच्चे जो पढ़ते हैं like books from an early age, they have a very well developed vocabulary. उनका attention span ज़्यादा होता है because it is not the book, the pages of the book or the images on the book are not running as fast as say Cocomelon. You know, वो impact है. Attention span है, vocabulary है, and overall, you know, their horizon, they know so much. Okay, let me talk about this. While we are talking about this, I came across a very beautiful concept about children's books, and that was primarily why I sort of decided to write. So the concept about children's books are, they're like windows, sliding glass doors, and mirrors. Now, what does it mean? Children's books are like windows, like you can see, you can look out of the window. So for example, you read something like Oliver Twist or Tom Sawyer or Huckleberry Finn, Matilda, कोई भी आप इनमें से बच्चों की किताब ले लें, तो you read about it and for example say उसमें कोई porridge खा रहा है, right? कोई भी बच्चा porridge खा रहा है, you look at somebody else's culture, right? Porridge is not something which is you know, समथिंग फ्रॉम कश्मीर के कल्चर से नहीं अराइज करता है, बट एक बच्चा जिसने वो पढ़ा नोज कि इंग्लैंड में कोई जगह है जहाँ पॉरेज खाई जाती है, सो यू नो बच्चा सोचने लगता है, दे स्टार्ट इमेजिनिंग. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. आप सोचें कोई एक बुक है ले गोल्डी लॉक्स, इट्स अबाउट 3 bears एंड यू नो अ चाइल्ड ईट्स पॉरेज. मुझे पॉरेज से याद आई वो किताब. सो when I read it and when you read it, you imagine bears in a different way. I imagine bears in a different way, like talking bears. कैसे होंगे? मगर अगर वही मैं कार्टून के फॉर्म में आपको दिखा दूं, you stop imagining. It is brought to you on a platter, right? And you don't think, you're just sitting there and something is shown to you. There's a huge difference. So that's one. Windows. Now sliding glass doors is like you can see what's the other culture, and sometimes you open it and you step into that culture. You start imagining. For example, I told you I love Sherlock Holmes. So मेरे ज़हन में ना I would always imagine Baker Street कैसी होगी. I could actually picturize that. Now that's something, you know, you step into a different world. Now most important is mirrors, in my opinion. Now mirror is when a child reads a book and they see themselves, right? Mirror में आप अपने आप को देखते हैं.
it creates a huge difference, क्योंकि एक बच्चा बोल नहीं पाता है. Even when I say बच्चा, I mean 7, 8, 9, 10. You know, you see English culture, you see Western culture, you even see, like I told you, South Indian culture. But when you see, for example, Kashmiri culture, आपके जहन में automatically वो होता है कि ये culture book में है, ये लिखने लायक है. It is worth to be written about. That means it's important. Yeah. Right? Yes, so that's the thing. Like when a child feels represented, जैसे हम किसी कश्मीरी, किसी फेमस कश्मीरी के बारे में सुनते हैं, कहीं ना कहीं, वेदर यू लाइक देम और यू डोंट लाइक देम, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हैं ना, दैट ओके दिस इज रिप्रेजेंटेशन हो रही है. फॉर एग्जांपल कोई फेमस डॉक्टर है जिसको हार्वर्ड में अभी रिसेंटली ही वाज फेलिसिटेटेड, यू फील दैट प्राइड ना, चाहे कश्मीरी है, इवन इफ यू डोंट नो देम. Same is the case with books. This is the kind of impression that is created in a child's mind when they see their own culture being represented, when they see themselves in a book, they feel important. Okay. Yeah. So but यहाँ पे वो हो नहीं रहा है. मुझे I found that gap. देखिए मेरा पर्सनल व्यू एक ये है कि देखिए जैसे जो इंग्लिश लिटरेचर है, ऑब्वियसली इट इज़ अ लेगेसी ऑफ द कॉलोनियल पास्ट. तो majority of people in South Asia have access to English as a language, तो वो ये सब literature पढ़ते हैं. But then there is also local, hyper local literature in our cultures जो एक्सेस कर सकते थे बच्चे यहाँ के, स्पेशली यहाँ के. आप बाहर देखते हैं वो एक्सेस होता है, लाइक जैसे यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन है जहाँ पे हम सुनते आते हैं, लाइक ऑफ फेबल्स ऑफ दिस, तो वो हम सुनते थे, तो वैसे ही वो हमें पता चला है. हमारे टाइम पे भी ऐसी कोई बुक्स थी नहीं, लेकिन फर्क ये था कि जैसा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि कम से कम पेरेंट्स बिठा के सुना देते स्टोरीज एंड ऑल, सो दैट्स हाउ दे पास्ड. करेक्ट. यस. बट अब आप बोल रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी और ये सब है. बाहर वो भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी है. और यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपर लोकल लिटरेचर. दैट इज व्हाट सी आई विल, जैसे एक पब्लिकेशन है तुलिका, व्हाट दे डू इज दे are publishing bilingual books. Bilingual in the sense that I think they produce books in more than 8 languages. Tamil, Telugu, Malayalam, all these languages. So होता क्या, ऊपर English में लिखा है, नीचे local language में लिखा है. So what happens is the child reads in English and then the same story the child reads in their mother tongue. So that way they are also promoting their own culture. Yeah. Through books, both English and the language that the child understands, and then there is sort of an incentive for the child to understand their own mother tongue as well. There is incentive. यहाँ पे तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि इनफैक्ट जब हम स्कूल में थे तो कश्मीरी बोलने के ऊपर फाइन करते थे. Exactly. ठीक है. Yes. मतलब हमारी एक टीचर, अब तो खैर नाम लेने से तो कोई फायदा है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस थी विद कि कश्मीरी, डोंट स्पीक इन कश्मीरी, वो ऐसे बोलती थी. एंड इट वाज काइंड ऑफ दिस स्टिग्मा दैट वी काइंड ऑफ कि ये एक चीज़ है, गंदी चीज़ है, बिल्कुल, ये बैकवर्ड है, ये अनएजुकेटेड है या क्लासलेस है. तो अब अगर हम आज देख रहे हैं कि बच्चे जो है ना, हम तो कश्मीरी, यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कश्मीरी जो बोलती है, दे नॉट एबल टू राइट इट और करेक्ट. या तो ये लिटरेचर तो बात ही नहीं कि अगर होता भी लिटरेचर शायद हम पढ़ नहीं पाते. ट्रू. तो अब हम कैसे इसको, मतलब हाउ आर वी नाउ सपोज टू डील विद दिस थिंग? देयर इज सच अ ह्यूज गैप. लाइक आई एम ओल्ड enough, I have a kid now and I still not able to read Kashmiri. I can speak, I can understand Kashmiri, but लिख नहीं पाते हैं. तो ये कैसे करेंगे? I think it starts from an individual. ये change जो है, if you personally are feeling कि मुझे कश्मीरी पढ़नी नहीं आती, how am I going to fill that gap? It starts with you. आप बेशक शुरू करें. there is no age for learning a language. आप French सीख सकते हैं, कोई और language सीख सकते हैं. why not Kashmiri? think of it as something you can learn. And there are books. आप how to read Kashmiri. अब तो खैर it's a part of curriculum. So I don't feel there is any shame at the age of 34, 35, even after late 30s maybe. Pick up that book and start that change. हम नहीं करेंगे, हम बस बात करेंगे तो कैसे चलेगा? I think there is also probably
ये मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो शायद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इस पे इंटरेस्ट रहता है सब्जेक्ट पे, बट जब तक पॉलिसी लेवल पे एक एनकरेजमेंट नहीं होती है स्टेट की तरफ से ये, तो मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ पॉसिबल मेरे हिसाब से कि इंडिविजुअल्स कैन सेव अ लैंग्वेज unless and until there's a huge mechanism behind it, there's investment of time, of money. I think both can run hand in Really? hand. आप जो है चेंज, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी. ठीक है, पॉलिसीज अपनी जगह, अब नहीं हो रहा है या delayed है for whatever reason, because Kashmir is not a place as you cannot compare it to any You other can't. city, No, because it's not. Kashmir has had its fair share of turmoil. There are, you know, multiple things that we deal with. It's not just black and white. Yeah. So just waiting for policies, I don't think will help. We have to start from our own house, from our own kids. If, and most importantly, we have to raise awareness that our culture is dying. It is on the verge of extinction. आज अगर बच्चे जो हैं, if they're not able to recognize a samovar. In fact, I wanted to ask you about that, your experience, because हम इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो आपने मुझे कहा कि मैंने you also for our audiences, she also has these events where she tries to get Kashmiri children connected with each other, socialize. और अमीन बता रही थी कि एक ऐसे इवेंट पे उन्होंने कुछ बच्चों से बात की जो समावार दिखाया यहाँ पे. Correct. That's why that example is stuck in my head. और कुछ बच्चे आपने कहा कि वो पहचान नहीं पा रहे थे. नहीं, कुछ नहीं, मैक्सिमम नहीं पहचान पाए. Talk a little bit more on ऐसे examples, ऐसे anecdotes आपको है जहाँ पे आपको लगा कि यार हम कितना पीछे यहाँ पे. Right. So talking about Quillers Club and why I started it and how it started, I'll give a brief background before going on to what I did and what I found out. So when I initially, the idea was to write a book. When I came to Kashmir, I could not find takers for the book, in the sense like we have the regular publishers, books काफ़ी publish होती हैं adults के लिए कश्मीर से, ऐसा नहीं है. But so far as children's books are concerned, नहीं, I could not find any publisher जो exclusively children's book publish करे, या in general, because उसका reason मुझे ये लगता है because children's books, again, supply and demand, there is barely any demand for such books. और बच्चे भी शायद जो मेरी जनरेशन में पढ़ते थे वो आज भी वही पढ़ते हैं, you know, they buy even the kids that who read, उनके लिए उनके पेरेंट्स Amazon से खरीद लेते हैं, and you know that reading cup is filled. We did not have such books in our childhood, but it did not mean that I stopped reading या मैं इंतज़ार करती रह गई. तो when I did not find such publishers and I had those, you know, South ke publishing houses in my mind, so I decided that, you know, I'm not going to wait for anyone. It's people like me who set up all these. It's not like कोई फरिश्ते ऊपर से आके publishing house बनाते हैं. आपके मेरे जैसे लोग ही तो होते हैं. So that's when I started कि मैं first things first, let's have a publishing house. Maybe not just me, there are other writers also, there are other illustrators also who do want to write about Kashmir, and maybe they also faced a similar problem. They did not find any takers. And हर किसी का नहीं होता that, you know, आप उठ के publish कर लो किताब. It's not that easy. It's an expensive affair. You know, the quality of paper, and it's also an industry which is declining also, publishing as an industry. Yes, because अब इतना digital वो media है, खैर उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. So that's how Quillers Club started. That was my idea, to give a platform to my own book, and then to others also who want to promote Kashmiri culture through books. That you also have these events. Events, and वहाँ पे आपका experience ये रहा है कि Kashmiri children are not aware of like even the basics of our cultural क्या बोल सकते हैं practices या छोटे मोटे जो चीजें होती हैं. So Quillers Club जब start किया, I thought that writing books is not enough. We need to do more. So under the same umbrella, in Bangalore only, I did an event called Lokchar. जहाँ मैंने, you know, it was for Kashmiri parents and their children, basically for children to come together
and have a good time. We'll talk about the book, we'll talk about stories, we'll play games and activities and this and that, and most importantly they'll meet each other कि हमारे जैसे भी और मखलूक हैं इस दुनिया में और कश्मीरी हैं. So that was the idea, and we did it there. And you know, there's a beautiful restaurant, a Kashmiri restaurant called Sarposh. तो पूरा ambience भी पूरा कश्मीरी था, खाना भी कश्मीरी था. तो that event was a hit. बहुत मजा आया. Of course, मतलब they are not as connected to Kashmiri traditions as, you know, I would like them to be, but it was great fun. बहुत मजा आया, and we had games all based on Kashmir, like quiz थे. So I felt that, you know, kids connected a lot. Parents were happy to see that. You know, हर parent की desire होती है कि अपना culture हम अपने बच्चे को दिखाएं, but they didn't know how. So that is how I sort of started. And then abhi another event is coming up Sunday. I decided to do that in Kashmir as well. I wanted to bring Kashmiri children together, minus the screens, minus the वो जो games arena का शोर शराबा and lights and all of that, वो होता है कुछ भी नहीं. We all meet, we'll play games, we'll have, you know, storytelling, सब कुछ कश्मीर पे based, and we'll have a good time. So that's the idea behind the events. Now coming to meeting children, तो मैं I've met a group of kids, बच्चे कश्मीर में ही, जो कश्मीर में ही रहते हैं. काफ़ी लोग कहते हैं ना कि डायस्पोरा के बच्चे जो हैं they are not connected, but I was shocked to see that यहाँ पे भी बच्चे अब disconnect बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे culture से. So हम जब बड़े हो रहे थे, these things were not taught to us कि ये समावार है, ये है, ये वो है. It was a part of growing up कि हम लोग शादियों में जाते थे, हम ये चीज़ें देखते थे, वन देखते थे, वाजवान देखते थे, all of that. So I showed them a picture of समावार जो book में था. पहली बात वो पहचान नहीं पाए. दूसरी बात उन्होंने गैस किया, they said it's a jug, and I cannot tell you, Azan, my heart broke into million pieces. Something, you know, that represents, that screams Kashmir, and kids don't recognize it anymore. और उससे होगा क्या? It's not a small thing that you can just brush aside. जो बच्चा आज की डेट में समावार पहचान नहीं रहा है, ठीक है, when the child grows up, उसको उस समावार की इम्पोर्टेंस या उसकी कदर नहीं होगी. वो जनरेशन अगर ऐसे बड़ी हुई जिनको हमारे कल्चरल हेरिटेज, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट समावार, मैं एग्जांपल दे रही हूँ समावार की, तो वो खरीदेंगे नहीं तो आर्ट जो आर्टिजन्स नहीं बनाएंगे, एंड दे विल डिसकंटिन्यू, बिकॉज even artisans cannot you know, they cannot survive. It has to be sustainable for them. So an entire generation, if they are not in touch with their cultural heritage, what will happen is our culture will slowly die, which is already, I feel, on the verge of extinction. This is a very valid concern. I think हम लोग भी बहुत कुछ यहाँ पे stories जब करते हैं artisans वगैरह, no story goes without mentioning that ये जो culture है ये ख़त्म हो रहा है, या artisans हमेशा यही अपने interviews में यही बोलते हैं. But I think जो जैसे हमने अभी बात की, जैसे बेसिक जो खाने हैं वो भी नहीं पहचान पा रहे कश्मीरी, चाहे वो यहाँ पे हैं चाहे वो डायस्पोरा में. द अदर थिंग दैट मेरे हिसाब से जो मेरा कंसर्न है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस का सिचुएशन भी हम फेस करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी. एंड मोर देन दैट कि मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सेल्फ एश्योरेंस, कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेल्फ एश्योरेंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो. सॉरी मेरा गला भी थोड़ा सा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. तो एक वो बहुत ज़रूरी है कि अपने कल्चर की इज्जत करना, सो दैट दे रेस्पेक्ट देमसेल्व्स एंड अपीयर कॉन्फिडेंट एंड अपीयर मोर सेल्फ एश्योर्ड, मेरे हिसाब से. न कि ये कि ऐसा से कम तरीके के साथ जी. मैं तो ये मानता हूँ कि जो बहुत कुछ हम आजकल क्रिंज मटेरियल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो मेरे हिसाब से, आई कैन ऑब्वियसली बी रॉन्ग ऑन दिस, वो ये सिंपली है कि दिस चिल्ड्रन परहैप्स इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, या इनको ऐसा कुछ हमने एज अ सोसाइटी ऑफर नहीं किया कि दे कैन होल्ड ऑन टू एंड बी प्राउड अबाउट. एंड दैट इज व्हाई यू सी दीज बिहेवियर्स जहाँ पे मतलब बिल्कुल अजीब तरह कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. तो अजीब से डांसेस हो रहे हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. बिल्कुल.
और मुझे लग रहा है कि वो इज्जत अपने लिए भी कम हो रही है, मुझे लग रहा है बच्चों में भी। एंड दैट इज आई ऑल्सो सी दैट एज समथिंग जिसकी वजह से बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रहे हैं। इट माइट बी अ वेरी लॉन्ग ओवर रीच कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या बाकी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक ये प्रॉब्लम है। तो लिटरेचर का क्या रोल है? आई वांट यू टू मेंशन बिट ऑन दिस थिंग कि ये जो सेल्फ एश्योरेंस है, ये कॉन्फिडेंस है अपने कल्चर को लेके और ये सब, व्हाट रोल कैन लिटरेचर प्ले? एंड या हम बोल सकते हैं कि व्हाट रोल हैज इट प्लेड इफ यू सी दैट सेंस? एक तो मैंने आपको बताया, यू नो, अ चिल्ड्रंस बुक, इट कैन एक्ट एज अ मिरर, यू नो, रिप्रेजेंटेशन। व्हेन यू सी योरसेल्फ, एक अलग तरह की रिस्पेक्ट आती है फॉर योर ओन कल्चर विच यू मे नॉट हैव इवन इफ इट्स अराउंड यू। दैट्स वन। सेकंड, लिटरेचर एंड रीडिंग का जो कल्चर है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, सी इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ टॉडलर्स, एक बच्चा है, रीडर और नॉन रीडर की बात करते हैं। एक बच्चा है जो बुक्स में अपना टाइम, यू नो, नॉट व्हेन आई से बुक्स आई डू नॉट ओनली मीन कि दिन रात बच्चा बस किताबें पढ़ता रहे। आई कैन ऑल्सो नेम लाइक हॉबीज, हैंड्स ऑन हॉबीज, पेंटिंग, कलरिंग, रीडिंग, आउटडोर प्ले, 10 और चीज़ें हैं जो बच्चा कर सकता है। एंड रीडिंग ऑफ कोर्स इज इन माय ओपिनियन नॉन नेगोशिएबल। मेरे हिसाब से इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग ईयर्स। जो नॉन रीडर बच्चा है वो क्या करेगा? वो फोन देखेगा, टीवी देखेगा, यूट्यूब देखेगा। ठीक है, पहली बात तो ब्रेन डेवलपमेंट में डिफरेंस आ गई राइट फ्रॉम द फॉर्मेटिव ईयर्स। लाइक आई एक्सप्लेन, इमेजिनेशन भी आपकी खत्म हो रही है। व्हेन अ चाइल्ड रीड्स और पेंट्स, वो अपनी इमेजिनेशन यूज करे, दे आर actively using their mind compared to a child who's just sitting in front of a screen and absorbing the kind of content which is so fast. For example, Cocomelon, मैं नहीं बोल रही, हर कोई अब, now there's a lot of awareness around these YouTube shows that they are directly linked to mental disorders like ADHD, attention span है बच्चों का। सो जब ये एक एडिक्शन की लेवल तक पहुंच जाता है, डिजिटल एडिक्शन, यू कैन एक्चुअली कंपेयर अ चाइल्ड हु सिट्स लाइक, अनफॉर्चुनेटली, लाइक अ ज़ॉम्बी इन फ्रंट ऑफ टीवी, और वो एक, इट्स लाइक एन एडिक्शन, वेरी वेरी सिमिलर टू यू नो ड्रग एडिक्शन, एक्सेप्ट दैट ड्रग्स, एक जो टीनेजर है वो चोरी चुप के लेता है, और ये वाला ड्रग बड़े खुद अपने बच्चे को देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। यस। तो अब जब यही बच्चा, रीडर और नॉन रीडर की मैं बात करूँ, ये बच्चा बड़ा हो गया, इससे सेल्फ कंट्रोल है। ये बच्चा अगर टीवी भी देख रहा है, इसको पता है इसके पास जो है और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, यू नो, समथिंग दैट द चाइल्ड एंजॉयज, वेदर इट्स प्लेइंग, वेदर इट्स अगेन कलरिंग होगी, रीडिंग होगी, पजल्स हो गए, क्रॉसवर्ड है, सुडोकू है, सो मेनी अदर थिंग्स। बट द नॉन रीडर एंड द चाइल्ड हु इज addicted to screens knows no other way, and it is very difficult to bring the child back from that state to the state of a reader. Not impossible but difficult. अब अगर हमने यहाँ भी नहीं रोका, फिर क्या होगा? ये बच्चा टीनेजर बन गया, ठीक है, इसके और भी इंटरेस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड हु रीड्स, उसके और भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, बट जो बुक्स है ना, वो दैट स्टेज विथ यू, यू नो, दैट बिकम्स योर पार्ट ऑफ योर एंटरटेनमेंट, वेदर यू रीड फिक्शन, वेदर यू रीड नॉन फिक्शन। सो बस उसमें चेंजेस आती हैं। जो नॉन रीडर है, जो डिजिटल एडिक्शन का शिकार अनफॉर्चुनेटली हो चुका है, कैन ईजिली फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग एडिक्शन। अच्छा, व्हाई नॉट? ईजिली उसको अगर अवेलेबल हो, उसको वो सही और गलत का फर्क अभी नहीं समझ में आ रहा है, और देयर इज नो पेरेंटल कंट्रोल, एंड बच्चे को पता है कि मैं टैंट्रम्स थ्रो करूंगा, बिकॉज उसने बहुत पहले से सीखा है कि मैं टैंट्रम थ्रो करूंगा तो दे विल गिव मी द फोन, यू नो, चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट। या, सो उसे बड़े होके भी पता है कि मैं कुछ टैंट्रम थ्रो करूंगा, आई विल आस्क फॉर मनी एंड दे कैन बाय द ड्रग्स, एंड it is very evident in the Kashmir of 2025 that drug addiction is a menace. बहुत देखा जा रहा है टीन्स में, इवन किड्स as young as 10-11, I'm not pre-teens की भी मैं बात करूँ तो
तो कहाँ जा रहा है? अब जब यही बच्चे डिजिटल एडिक्शन से ड्रग एडिक्शन में गए, उसके बाद ये बच्चे व्हाट यू सी एज फ्यूचर? इट्स ब्लीक, इट्स डार्क. तो दिस इज हाउ लिटरेचर जो है, इट स्लोज यू डाउन, इट मेक्स यू पेशेंट, इट मेक्स यू काम, इट फैसिलिटेट्स योर इमेजिनेशन. आपको एक थिंकर बनाता है वो, यू आर एबल टू यूज योर माइंड. सो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो ज़्यादा हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे. अगर मैं तो बोल ही सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे फोर्सेस भी जो यहाँ पे थिंकर चाहते नहीं है, वो भी एक मसला है यहाँ का. बट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, कि देयर इज ऑल्सो what I'm curious about is also there's a huge brain drain in Kashmir. ठीक है, from Kashmir, from बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो वैसे यू योरसेल्फ लॉयर कम्युनिटी है या बाकी जो जिनको यहाँ पे जब आते हैं जॉब नहीं कर पाते हैं, इवेंचुअली दे हैव टू मूव आउट to Indian cities या abroad और सब. This is good, it is not bad also. Migration या आप travel बोले वो, it's not मजबूरी में अगर करें तो मेरे हिसाब से ख़राब है, लेकिन अगर आप परस्यू करें अच्छा करियर तो ठीक है उसके लिए. लेकिन वहाँ की जो डायस्पोरा आप जो हम बोल सकते हैं, जो बच्चे हैं कश्मीरी बच्चे हैं जो बाहर इंडियन सिटीज़ में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कल्चरल कनेक्टिविटी, या are they able to kind of retain the parents? Is it a huge struggle for them? And how are they faring in your experiences? How are the parents faring? How are the children faring? Let's talk about first the first part of your question. Why is it even important? See, you identify as an individual. Professionally, I'm a lawyer. उसके बाद चलो आपकी क्या आइडेंटिटी, आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो. उसके बाद चलो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है, आप जिस भी फेथ से बिलोंग करते हैं. बट ऑन अ हायर लेवल, उससे भी ज़्यादा, मतलब क्या चीज़ है जिस पे आप कनेक्ट करते हो. आपके फेस्टिवल्स हो गए, आपके ट्रेडिशंस हो गए, आपकी शादियां हैं, इवन फ्यूनरल्स, आपके जो भी तौर तरीके हैं, दे ऑल कम फ्रॉम योर कल्चर. So that roots you, that grounds you, that brings you back, that connects a huge community. मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कल्चर के बगैर आप जो हैं एक you're like a decorative plant जो बस है वहाँ, ठीक है, वो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे अपनी लाइफ परस्यू कर रहा है. बट when you are rooted with your culture, that plant can flourish, it can thrive, it can become a forest. ठीक है. सो इसलिए मेरा मानना है, चाहे आप डायस्पोरा, चाहे आप कश्मीर से बाहर हैं, यू नीड टू हैव दैट कनेक्शन. जब यू कनेक्ट ओवर फूड, यू कनेक्ट ओवर योर ट्रेडिशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि आप कनेक्ट करते हो, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल, ऑफ कोर्स देयर इज अ स्ट्रगल, ऑफ कोर्स देयर इज अ स्ट्रगल. लाइक व्हाट? लाइक देखिए, जो हमारा टाइम है, इट इज़ अ वेरी फास्ट पेस टाइम. इवन पेरेंट्स डोंट हैव टाइम. क्लॉक वर्क की तरह शुरू होते हैं सुबह, 7:30 you send the kids to school, then you have work, then you have late evenings, and once you're back you're too tired to even socialize. फिर आपके सैटरडे संडे बचते हैं, उसमें आपके घर के काम होते हैं, बहुत सारे काम. वेयर इज़ द टाइम टू सोशलाइज? कश्मीर में क्या होता है, when you live here, even if the same routine that you have here, बट आपके घर में ही इतना इट इज़ सो रिच इन कल्चर कि यू डोंट नीड टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. बट सो फार एज वी आर कंसर्न्ड, जो बाहर रहते हैं, देयर आर आपके बच्चे के फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल, दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, उनकी अलग तौर तरीके हैं, आपके नेबर्स अलग हैं, तो इट डज नॉट कम नेचुरली देयर. यू पेरेंट्स हैव टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कंपेयर्ड टू the parents who are raising their kids within their own culture, their own community. And this I don't say only for Kashmir, आप कोई भी community ले लो, which is say Maharashtrian है, Gujarati है, if they're not living in their home states, it's equally difficult. So what do? They look for those connections. एक कश्मीरी को ढूंढता है. जैसे मैं एज अ कश्मीरी अगर अपनी बच्ची को लेके जाऊँ एक और कश्मीरी के घर में, शी कैन क्विकली आइडेंटिफाई ये सेम खाना है जो हमारे यहाँ भी बनता है, एंड देयर इज दैट कनेक्शन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सोशलाइज, एंड that was the primary idea behind the event Lokchar that I was talking about. I personally also, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो आइडिया. लेकिन अब अगर जैसे आपने कहा कि ये स्ट्रगल है, सो फॉर एग्जांपल अब अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं बाहर
जहाँ पे ये उनको है नहीं, दूर दूर तक कोई कश्मीरी सर्कल में नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों का, मतलब उनका बिहेवियर्स में आप क्या देखते हैं कि ऐसा कंसर्न They're disconnected from their roots. They don't know what's happening back home. They are, you know, उनके roots इतने weak हैं, like I said, they don't have anything to fall back on. उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो डिस्कनेक्ट तो हो गया, बट उनके मैं कह रहा हूँ कि उनके तौर तरीकों में क्या दिखता है? वो एक मिक्स हो गया, उनके अपने तौर तरीके अलग से बन गए जो उन्होंने पिकअप किए फ्रॉम देयर नेबर्स, फ्रॉम पीपल देयर पेरेंट्स यू नो हैंग आउट विद, उनके अलग तरीके बन गए, उनके अलग जैसे क्विजीन हो गया, खाना हो गया, they don't like it, they don't relate to it. And it eventually comes down to what? If this generation does not have connection with their culture, when they grow up, they will not, वो नहीं होते एक आर्ट है या कल्चर है उसके कदरदान ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल, और वो खत्म हो जाएगा। तो हम आज भी देख ही रहे हैं बेसिकली, पीपल प्रेफर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो मिल जाती हैं यहाँ पे इजीली, बट हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेज़न क्या जो Amazon, yeah. आई डोंट वांट टू नेम एक्चुअली, लेकिन बट ऑल द ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स, शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से खरीद रहे हैं और असर हम देखने को मिल रहा है। बट एक मैं वापस से आई वांट टू पोज अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पब्लिशिंग हाउस नाउ। सो इट इज मोस्टली आप इंग्लिश में लिख रहे हैं अभी फिलहाल वगैरह, तो आपको लग रहा है क्या कि दिस इज इनफ एज एन इंडिविजुअल, दिस इज इनफ फॉर यू, या और क्या करना चाहिए बेसिकली हमें, इसके अलावा क्या करना चाहिए पब्लिशिंग हाउसेस के अलावा? आप यू वर मेंशनिंग, वी हैड अ चैट अर्लियर, यू वर मेंशनिंग कि वी शुड रियली एनकरेज लाइब्रेरीज, वी शुड रियली एनकरेज, तो लेकिन करिकुलम में क्या हो सकता है ऐसा जो एजुकेशन के अलावा, कि क्या कर सकते हैं उसके अंदर जो so far as schools and curriculums, schools मैं बात करना चाह रहा हूँ, yes exactly, schools के अंदर क्या कर सकते हैं? we can do a lot. I think बच्चे जहाँ 8 से 9 घंटे अपने गुजारते हैं जिस जगह पे, they have a big role to play. जैसे कि स्कूल्स में यू कैन हैव, जैसे लाइब्रेरी पीरियड होता है, हर स्कूल में होता है। वो तो सबसे पहले मेरे बचपन में तो वो मतलब मान लीजिए वो सोने का पीरियड होता था, मतलब सो लो या खेल लो उसमें। हाँ, तो उसमें हम क्या बट अभी की मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज पर्सनली मैंने नहीं विजिट की है यहाँ की लाइब्रेरीज या स्कूल में, पर्सनली नहीं गई हूँ। नंबर 1, टेक दैट 1 पीरियड वंस अ वीक वेरी वेरी सीरियसली, ठीक है? योर लाइब्रेरी शुड बी इक्विप्ड, योर लाइब्रेरी शुड बी थ्राइविंग, वहाँ जितनी हो सके आप बुक्स रखें कि बच्चों का एक्सेस उन चले। नहीं है पब्लिक लाइब्रेरीज, कोई बात नहीं, स्कूल की लाइब्रेरीज तो होनी चाहिए ना, यू नो, सो दैट किड्स कैन पिक अप बुक्स। नंबर 2, द लाइब्रेरियन शुड बी यू नो वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट किस एज के बच्चे क्या पढ़ना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। दे शुड हेल्प द चिल्ड्रन टू पिक अप द राइट बुक्स, दे शुड सी रीडिंग लेवल क्या है, दे शुड बी अवेयर। ये नहीं कि मतलब लाइब्रेरी पीरियड है तो यू नो बच्चे जो मर्जी बुक निकालें या लाइक यू राइटली सेड सो जाएं खेलें, वो नहीं। मेक दिस लाइब्रेरी पीरियड वर्थ इट, एंड वंस द चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल टेक्स द बुक फॉर अ वीक होम, व्हेन द चाइल्ड इज बैक आस्क देम व्हाट डिड यू रीड, क्या आपने पढ़ा, एनकरेज करो, सो दैट नेक्स्ट वीक वो बच्चा उसके जहन में रहे कि यू नो द टीचर और लाइब्रेरियन शी इज गोइंग टू आस्क मी, सो आई बेटर रीड इट। दैट्स वन, लाइब्रेरी शुड बी fully functional and equipped with good books, good literature. Number 2, they should encourage, बहुत सारे ये होते हैं online, even we did it in winters. I did something called an online reading challenge. All what parents had to do is register their children, and every week they had to send me the books that they have read. कुछ नहीं था, 4-week challenge था, and 4 weeks के लिए I used to give them a theme. For example, theme 1 was animal related कोई book, कुछ उतना complex नहीं था. So by the end of 4 weeks I had, you know, it was so heartening. Parents मुझे text करते थे कि बच्चे ने आज ये किताब पढ़ी, you know, all of that. And क्या छोटा सा एक incentive, you know, the child who read maximum books got a small present from us. That's it. So ऐसे reading challenges आप encourage करें within the schools, even privately. बहुत सारे
ऐसे challenges होते रहते हैं. For example, there's one called, अभी चल रहा है, it's called Neve Literature Fest. No, sorry, Neve Literature Challenge, Reading Challenge. And it's a big thing in India, this Neve Literature in South India, जहाँ बहुत जगहों से लोग आते हैं. It's a children's book literature festival basically, जहाँ authors आते हैं, publishers आते हैं, बच्चे आते हैं. एंड उसी का एक पार्ट है नीव रीडिंग चैलेंज. एनरोल योर चाइल्ड. अगर स्कूल में नहीं, एज अ पेरेंट बी अवेयर, लुक फॉर दीज थिंग्स. आजकल यू नो वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स. आप वो चैलेंज ढूंढिए, बच्चों को एनरोल कीजिए, इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड. एंड आई वुड से यू नो अ बुक, एक कॉफी कम पी लो पर एक बुक खरीद लो, यू नो समथिंग लाइक दैट. बिकॉज आई हैव सीन दैट. मतलब माशाल्लाह कश्मीर में पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे वुड एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च हो जाता है. लेकिन वहाँ पे आप खाइए, आप पिए, जो भी आप करना चाहें करें. आप मतलब एक्स्ट्रावेगेंस जो आजकल शादियों में देखने को मिलती है, उसकी जगह आप उसका 1/4 भी नहीं, मैं बोलूँगी मतलब क्या ही हिस्सा होगा. आप बच्चों के लिए किताबें खरीदिए, यू नो इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड. इट विल रीप बेनिफिट्स व्हेन दे आर टीनेजर्स, ट्रस्ट मी. यहाँ पे आई थिंक द लार्जर प्रॉब्लम इज कि कल्चरल कैपिटल एक्यूमुलेट करने में बेसिकली यहाँ पे प्रायोरिटी है नहीं. एंड आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज दैट ये पेरेंट्स तक इसका बहुत बड़ा ओनस है. Correct. कि आप वो कल्चर इम्बाइब करें. मेरे हिसाब से तो मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि अगर चलिए अभी फिलहाल आपका पब्लिशिंग हाउस है फॉर इंस्टेंस, बट आई एम होपिंग दैट देयर आर मोर पब्लिशिंग हाउसेस, मोर लाइब्रेरीज. बट अगर तब तक वहाँ पे नहीं है तो यू शुड स्टार्ट समवेयर. एंड जो ओरल ट्रेडिशन है हमारा, कम से कम स्टोरी टेलिंग का, इसमें आप सोने से पहले बच्चों को बोलते थे, कश्मीरी कहानियां बोलते थे. स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन. कम से कम वो कर लीजिए. स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन एंड स्टोरीज, through stories, whether it's oral, whether it's books, it's the best way to bond with your child. We know it. बच्चों, every child likes a good story. I don't know any child जिसको story सुनना नहीं पसंद है. So I think this was very interesting discussion. और it's very important also क्योंकि यहाँ पे बच्चों को लेके बहुत importance है. ये मैं I would like to address the audiences as well कि यहाँ पे हमारे सारे schedules जैसे हैं कि बच्चे एग्जाम में मतलब हम जा ही नहीं सकते हैं, शादी में जा सकते हैं. तो जब इतना करते हैं बच्चों के लिए कि इतना आप टेलर करते हैं अपने ये, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड आई एम रियली हैप्पी विद द इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन एंड आई होप कि और भी हो इनिशिएटिव्स. But till then, I think our readers, our audiences, they should also. देखिए आप पे भी अब ये चढ़ गया रीडर्स वाला. हाँ बिल्कुल. तो ये है कि मेरे को लगता है audiences should start this discussion on it. Yes. कि हमें क्या करना चाहिए. We need to start a conversation around it. Conversation होनी चाहिए कि क्या हो. And कि अगली बार भी maybe we can get in people who are in a sense kind of victims of what is happening in a sense. The parents जो है हम देख रहे हैं कि ये असरात क्या है इसके. We will try to get more voices कि जो हमारा जो लिटरेचर खत्म हो रहा है, जो कल्चर खत्म हो रहा है, कि उसका असरात क्या हो रहा है. Because I've fairly heard a lot of bad stories as you said. मैं भी काफ़ी कुछ सुनता हूँ. But till then I hope you liked our episode. I hope that you enjoyed the topic. और आप हमको लिखते आ रहे हैं और हम ये रिक्वेस्ट करें कि आप और लिखें कि हम किन टॉपिक्स के ऊपर एक्सपर्ट गेस्ट को लाए, जैसे कि आज अमरीन हमारे साथ थी. एंड होपफुली वी विल ब्रिंग मोर सच इम्पॉर्टेंट वॉइसेस फ्रॉम आवर होम, फ्रॉम आवर प्लेस. एंड टिल देन, नेक्स्ट टाइम, सी यू.